ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸੋ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਦ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨਕਰਤਾ ਆਪ ਦੇ ਮੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਲੂਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇਗਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ? ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2024 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮ ਤਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। सभी समीकरणों को शिथिल करते हुए 4 जून 2024 को इंडिया अलायंस चंडीगढ़ की लोकसभा संसदीय सीट जीतेगा। क्या पवन बंसल जी आपके साथ चलेंगे? देखिए आपका और हमारा चोली दामन का साथ रहा है। मैं भी 20 साल हो गए राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। मैं एक बार फिर से ये बात दोहराता हूं, सभी अटकलों को शिथिल करते हुए सभी समीकरणों को शिथिल करते हुए सभी षड्यंत्रों को शिथिल करते हुए 4 जून 2024 को इंडिया अलायंस दिल्ली में सरकार बनाएगी और उसमें एक सीट का जो योगदान है वो चंडीगढ़ की जनता की तरफ से होगा। सूरत में सीट जीती है भाजपा ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? तिवारी जी सर, मैं अर्थ प्रकाश का चीफ रिपोर्टर हूं सर। किसका? अर्थ प्रकाश अखबार का। तो ये पवन बंसल जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े नेता हैं, नाराज हो गए हैं। नाराज बंदों को मनाया भी जा सकता है। लक्ष्य जी का भी बयान कई बार यह है कि उनको हम मनाएंगे, बड़े नेता हैं। तो क्या उनको मनाने में आप कामयाब होंगे? अगर कामयाब नहीं होते तो उनके सपोर्ट के बगैर मतलब आप चुनाव जीत जाएंगे? मेरा देखिए, श्री पवन कुमार बंसल जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं और पता नहीं आपने ट्विटर पे मेरी एक्स पे पोस्ट देखी होगी कि 31 मई 1984 को, आज से ठीक 40 साल पहले,
जब वो पंजाब से निर्विरोध राज्यसभा के सांसद जीत के आए थे या उनकी घोषणा हुई थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में जो पहला स्वागत समारोह हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उनके स्तुति में पहला भाषण मैंने दिया था। और वो मेरे सत्कारयोग पिताजी के सामने मेरा पहला और आखिरी भाषण था, क्योंकि 3 अप्रैल 1984 को उनको आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था 24 सेक्टर हमारे निवास स्थान। तो उनसे एक हमारा बहुत पुराना संबंध है। हमारे साथ, मैं उनके साथ भारत सरकार में भी काम कर चुका हूँ, पार्टी में भी हम इकट्ठा काम करते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हम सदस्य भी हैं, और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना आशीर्वाद, वो अपना समर्थन, ये जो एक बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एक जो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि वो हमको आशीर्वाद भी देंगे और इस बड़ी लड़ाई में अपनी आहुति भी डालेंगे, अपना सहयोग भी करेंगे। आशीर्वाद लेने अभी तक आप बंसल जी के घर तक देखिए, ऐसा है कि हर चीज कैमरे के सामने नहीं होती। बातचीत करने का के कई जरिए हैं, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, वो हमारे सम्मानित हैं, हम आप उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस महासंग्राम में जो एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसमें जरूर वो शामिल होंगे, समर्थन करेंगे और आहुति डालेंगे। एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सब्जेक्ट, इफ समबडी हैज एनीथिंग एल्स टू कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बहुमत में आएगी और बीजेपी 150 सीटों पर आएगी, लेकिन जिस तरह से I can't answer questions from this side and that side simultaneously. So okay, so one by one, you know, we are here. कोई भाग नहीं रहे हम। हाँ, बोलो। I'll identify. Can you identify yourself? अमित पांडे हूँ, न्यूज़ 24 से। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 150 सीटों पर सिमट के रह जाएगी। किस बेस पे आप ये बात कह रहे हैं? क्योंकि एक के बाद एक कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका बयान जिस तरह से आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिल रहा है आपको टारगेट करने का। सैम पिट्रोदा की बाइट आज जिस तरह से आई, उनका जो बयान सामने निकल के आया, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, परसेप्शन इस तरह से कह रहे हैं कि अगर बनती है तो आधी जो एसेट्स होगा वो सरकार बनने के बाद सरकार ले लेगी। इस तरह के बयानबाजी जो आ रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डेंट कर रही है। आप इस बात को मानते हैं? मैं इसका जवाब बिल्कुल सीधा दे देता हूं। एक समय था जब हम 16-16, 17-17 घंटे चलचित्र के ऊपर बहस करते थे, आप ही के टेलीविजन चैनल्स पे। सोमवार से लेके शुक्रवार तक बहस करते थे, और जब शनिवार को अपने क्षेत्र में जाते थे तो कोई ये नहीं कहता था कि आपने बहस अच्छी की, आपने बहस बुरी की। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, और इसको आप गलत मत लीजिए, इस देश में 2 समानांतर संवाद है। एक संवाद जो चलचित्र पर और मीडिया पे चलता है, और एक संवाद है जो जमीन के ऊपर है। और आज जमीन का जो संवाद है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लोगों के मुद्दे क्या है? लोगों के मुद्दे हैं बेरोजगारी, लोगों के मुद्दे हैं महंगाई, लोगों के मुद्दे हैं जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोगों के मुद्दे ये हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, उनके जो अग्रिम संगठन है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव वो लड़ रहे हैं। ये जमीनी मुद्दे हैं। इसलिए आपका मैं बहुत आदर और सत्कार करता हूं, पर मैं
इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं कि जब श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, या जब श्री अरविंद केजरीवाल जी लोगों की बात करते हैं, तो वो जो जमीनी स्तर का दर्द है, जो मुफलिसी, जो गुर्बत पिछले 10 साल में लोगों के ऊपर थोपी गई है, लोगों को उससे तंगी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते थे मनरेगा गड्ढे खोदने की स्कीम है, और कहते थे कि मैं जब आऊंगा तो मनरेगा बंद कर दूंगा। 2013-14 में जब यूपीए की सरकार गई, 33,000 करोड़ रुपया मनरेगा का बजट था। आज बजट क्या है 10 साल बाद? 90,000 करोड़। 15 लाख मैंडेज क्रिएट किए जाते थे 2013-14 में मनरेगा के तहत। आज कितने मैंडेज क्रिएट किए जाते हैं? 34 लाख। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि कृषि क्षेत्र जिसके ऊपर 65% हिंदुस्तान की जनसंख्या निर्भर है, वहां पे लोग मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार है। तो कहां गए वो वायदे, कहां गई वो 20 करोड़ नौकरियां? क्यों गैस का सिलेंडर 1300 रुपए पे बिक रहा है? क्यों पेट्रोल 100 रुपए पे है? क्यों भारत का जो रुपया है वो 100 के इर्द गिर्द घूम रहा है? तो इसलिए लोग बेवकूफ नहीं हैं, और इसलिए पहले चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए। जब मैं 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो हमने 3 अप्रैल को अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था, और 10 मई का चुनाव था। जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा, तो हमने 3 अप्रैल को चुनाव प्रचार शुरू किया था। 3 अप्रैल इसलिए क्योंकि उस दिन मेरे पिताजी की शहादत हुई थी। 13 मई को मतदान था। जब मैं 2019 में तीसरी बार चुनाव लड़ा, तो 12 अप्रैल को हमने चुनाव प्रचार शुरू किया था, और 19 मई का चुनाव था। आज 37 दिन पड़े हैं, आखिरी चरण का मतदान है। समय बहुत है, और सही समय पर जो सही काम होता है उसका नतीजा सकारात्मक निकलता है। Well, since you belong to a very, very esteemed channel, I'm quite sure that you must have seen Mr. Jairam Ramesh's reaction on that. I have nothing more to add or subtract to it. देखिए, ये चुनाव कुछ बुनियादी असूलों पे लड़ा जा रहा है, कुछ बुनियादी प्रिंसिपल्स पे लड़ा जा रहा है। उनका मैंने आपके सामने उल्लेख कर दिया। हम एक सकारात्मक तरीके से इस देश को बचाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, और इसलिए मैंने जैसे पहले कहा कि सब समीकरणों को, सब अटकलों को शिथिल करते हुए 4 जून को जब नतीजा आएगा, इस देश में बदलाव होगा। आई विल मेक दिस द लास्ट क्वेश्चन। आपके पहले का सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ेगी और जीतेगी। इस चीज का कहते हैं जो समय निकल गया उससे बड़ा सच कुछ नहीं होता। कोई संगठन हमारा नहीं था पिछले कुछ टाइम से, आपकी बात सही है, पर हम कुछ कर सकते हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण ही हमारे मेयर साहब बैठे हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, कुछ महीनों के दौरान ये हुआ है। और दूसरा सवाल, पूरे जोर शोर और पूरी मजबूती के साथ आम आदमनी पार्टी और साथ में कांग्रेस मिलकर इस इंडिया अलायंस गठबंधन के अंदर एमपी कैंडिडेट जो हमारे हैं मनीष तिवारी जी, उनको जिताएंगे। अगला सवाल का जवाब मनीष तिवारी जी देंगे। नारायण जी, मनीष जी आपसे ही है,
राघव चड्ढा जी का क्या स्टेटस है? मेरे इलेक्शन में बिल्कुल सक्रिय थे, अब इतने बड़े इलेक्शन में वो है ही नहीं, अब आ भी गए। उनको कुछ हेल्थ इशू था उनकी आंख में, वो जल्दी हमारे बीच में होंगे। मैं कह रहा हूँ जल्दी हमारे बीच में होंगे, जल्दी ही हमारे बीच में होंगे। लास्ट सवाल है, आपने बात की कि बीजेपी 150 तक सिमट जाएगी। ये कंसर्न इसलिए पूछ रहा हूँ सर आपसे मैं, क्योंकि बीजेपी एक तरफ से ये दावा कर रही है कि 10 साल पहले जो सरकार थी बीजेपी आने से पहले, वो स्कीमों स्कैंडल्स की सरकार थी, हमारी स्कीमों की सरकार रही। एक सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल सर, अपना कुलवंत जी आपके साथ जरूर है, लेकिन पंजाब में अगर कंसर्न देखा जाए, पंजाब में ये आपके बिल्कुल उलट है, वहाँ पर लड़ रहे हैं, तो आपस में कैसे पूरा समीकरण बिठाकर सब चला जाएगा सर? पहली बात तो मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं, हमारा चुनाव घोषणा पत्र आ चुका है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र को औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया है। दूसरा,